Hello students, today we'll discuss about the graphical method to find the solution of pair of linear equations. The general form a1x plus b1 by plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2 by plus c2 is equal to 0. So I have framed a table here to better understanding of the graphical representation and algebraical representation for comparing the coefficients of these two pair of linear equations. So in first column I have write the different pair of lines, and in second a1 upon a2, that is the ratio of the coefficient of x, and b1 b2 c1 upon c2 in this way, and the comparison of ratio, graphical representation as well as algebraic representation. So first line is x minus 2 by is equal to 0 and 3x plus 4 by minus 20 is equal to 0, right? So here the coefficient of x is, as comparing from the above part, coefficient x is 1 and on second line coefficient of x is 3. So ratio a1 upon a2 becomes 1 upon 3. Similarly, for the second coefficient by in both the lines, that is ratio b1 upon b2 becomes minus 2 upon 4, and for the ratio of constants, that is c1 upon c2, that is 0 upon minus 20. So we have found that here 1 upon 3 does not equal to minus 2 upon 4, so a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2. This means that lines are intersecting lines and has a unique solution, or exactly one solution, means two lines are intersecting at a unique point, at a single point. So it has exactly one solution. And for these two lines, 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 is equal to 0, by comparing again the coefficient of the variables. So 2 upon 4 a1 upon b2, and for b1 upon b2 it becomes 3 upon 6, and for c1 upon c2 it becomes minus 9 upon minus 18. So here we found that all the ratios are equal. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, means the lines are coincident lines, means one line lines upon the other line. So it has infinitely many solutions. And for this third part, x plus 2 by minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4 by minus 12 is equal to 0. Now by making the ratio of the coefficients, फर्स्ट पार्ट रेशियो ऑफ दी जो एक्स वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट की रेशियो 1/2 बनती है, बाई वेरिएबल की कोफिशिएंट की रेशियो 2/4 बनती है, और कांस्टेंट की रेशियो -4 -12 बनती है. तो 1/2 और 2/4 तो बराबर हैं. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but does not equal to c1 upon c2, means lines are parallel lines, it has no solution. हम इंटरप्रेट ये करते हैं कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो a1 upon a2 डज नॉट इक्वल टू b1 upon b2. यहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं कॉमन पॉइंट पे, तो इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन. जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2, मीन्स लाइन के ऊपर ही लाइन होगी. जैसे L1 और L2 दोनों एक ही लाइन, दोनों एक आपस में एक ही लाइन के ऊपर हैं, कोइंसिडेंट हो रही हैं, तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे. और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, means lines are parallel, L1 is parallel to L2, so it has no solution. So this is all about this table. From this you got that. So again I'm writing the general form. I have a question here for you, that here you have to compare the ratio of the coefficients. पहली लाइन लिख ली हमने 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, दूसरी लाइन 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. तो यहाँ पे a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 हमने फाइंड आउट करने हैं. फिर हमने देखने हैं कि वो रेशियो इक्वल आती है या नहीं आती है, तो अभी हम चेक करेंगे. तो पहले हम a1 a2, b1 b2, c1 c2 फाइंड आउट करेंगे. तो a1 हम जो ऊपर कंपेयर करते हैं तो a1 5 आया पहली लाइन के लिए, b1 हमारे पास -4 आया, c1 हमारे पास 8 आया. अब दूसरी लाइन में चेक करते हैं हम, तो a2 हमारे पास 7 आया और b2 हमारे पास 6 आया, एज वेल एज c2 हमारे पास -9 आया. अब हम रेशियो चेक करते हैं. a1 upon a2 that is 5/7, now b1 upon b2 that is -4/6,
एंड C1/C2 दैट इज 8/-9। अब हम कंपेयर करके देख लेते हैं। हम यू फाइंड दैट 5/7 डज नॉट इक्वल टू -4/6 डज नॉट इक्वल टू 8/-9, दैट इज A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। कोई भी रेशियो जो कोफिशिएंट्स की हमने कंपैरिजन किया रेशियो कोई भी बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, दैट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग मीन्स जब इंटरसेक्टिंग होगी दैट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, सो इट हैज़ अ यूनिक पॉइंट। दूसरी लाइन में देखेंगे हम तो 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे A1 हमारा 6 है, B1 यहाँ पे हमारा -3 आ गया और C1 हमारे पास 10 आ गया। और वैसे कंपेयर करेंगे दूसरी लाइन के लिए तो A2 हमारे पास -4 आ गया, B2 हमारे पास -1 आ गया और C2 हमारे पास 9 आ गया। अब अगेन बाई कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स दैट इज 6/2 बन गई पहली, दूसरी -3/-1, तीसरी 10/9। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि 2 ये तो 3 हो गई रेशियो और ये भी कट गया माइनस तो 3। तो यहाँ पे फाइंड आउट ये हो रहा है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट डज नॉट इक्वल टू 10/9 दैट इज C1/C2। सो दिस कंडीशन प्रिवेल्स जो हमने टेबल बनाया था फॉर लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। यहाँ पे लाइन्स कैसी होंगी, लाइन्स आर पैरेलल मीन्स इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसे आएंगे, नो सोल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम की। तो पहले वाले में जो सिस्टम की बात करेंगे तो लाइन्स पैरेलल यहाँ पे आ गई। तो पहले वाले में जो लाइन जब इंटरसेक्ट होगी तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा, और जब हमारी लाइन्स पैरेलल हैं, जब लाइन्स पैरेलल हैं तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। So line intersecting at a point, for intersecting line it has a unique solution, exactly one solution, then system is consistent. And when the lines are parallel means no solution, then system is inconsistent. So I have another question to find the given pair of linear equation for system is consistent, inconsistent and obtaining the solution graphically. तो पहले हमने लाइनें लिख दी x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो सबसे पहला काम तो यही रहेगा आपकी, जो भी आपकी लाइनें होंगी उनको अपने जनरल फॉर्म की तरह लिखना है, ठीक है। तो x + y यहाँ पे -5 = 0 बनेगा, क्योंकि जैसे हमारे पास ऊपर है a1x + b1y + c1 = 0 है, तो हमने सेम वे में लिखनी है लाइनें जैसे हमारी जनरल फॉर्म में होती हैं। तो हमारी लाइन होगी x + y -5 = 0 और 2x + 2y - 10 = 0। अब हम कोफिशिएंट्स इनके लिख लेंगे। तो इस तरह हमने सारे a1, b1, c1, a2, b2, c2 सब लिख लिए। अब हम रेशियो चेक करेंगे। तो हमने रेशियो निकाल दी, a1/A2, b1/B2, c1/c2 हमने रेशियो निकाल दी। तो हम ये देख रहे हैं कि सबकी रेशियो इक्वल टू 1/2 आ रही है ना। तो a1/A2 इज इक्वल टू b1/B2 इज इक्वल टू c1/c2 मीन्स जब सारी रेशियो इक्वल होती हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन के सोल्यूशन होते हैं इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब हम ग्राफिकली इसको सोल्यूशन इसके फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमने दोनों लाइन लिख ली, अब हम दोनों लाइंस के सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने पिछली क्लासेस में स्टडी करा है 9th क्लास में, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर अ लाइन। तो पुट x = 0 देन y = 5 एंड पुट x = 5 देन y = 0। सिमिलरली हम दूसरी में पुट x = 0 y = 5 एंड पुट y = 5 पुट x = 5 y = 0। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के जो सोल्यूशन है एग्जैक्टली सेम है, एक जैसे सोल्यूशन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारी कोइंसिडेंट लाइन्स थी। तो हम जब प्लॉट करेंगे तो एक लाइन ही दूसरी लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो जब इनको प्लॉट किया हमने 0,5 को पॉइंट को प्लॉट किया, तो यहाँ पे पोजीशन आएगी 0,5 की और यहाँ पे आएगी 5,0 की। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे वी विल गेट एग्जैक्टली, दोनों लाइनों के लिए यही सोल्यूशन है। तो दोनों के लिए दोनों जो लाइनें बनेगी वो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंट ऑन ईच अदर। तो यहाँ पे हमने दोनों लाइनें ड्रॉ कर ली और लाइन के ऊपर ही लाइन आई, देन लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, सो हैविंग इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। अब इनके मैनी सोल्यूशन होंगे। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन
फॉर दिस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक और क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. So let x meter be the length and y meter be the width. अब यहाँ पे पेरीमीटर की बात की है तो आपको मालूम है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, या 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पे हम पहले मान के चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन बोलता है कि जो लेंथ है दैट इज 4 मीटर देन इट्स 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। सो x इज इक्वल टू y प्लस 4, एक लाइन हमारी बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो जनरल फॉर्म की तरह लिखेंगे तो x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ हमने x और y मानी है तो 2x प्लस 2y हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, तो वो किसके बराबर है, 36 दिया हमारे क्वेश्चन में। हाफ द पेरीमीटर हमारे पास 36 मीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारी लाइंस जो बन गई थी, अब इसी लाइन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये लाइन जो सॉल्व करके आ जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36 इंटू 2 हो जाएगा। फिर 2 कॉमन आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे, अल्टीमेटली इट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सो हम इसको जनरल फॉर्म की तरह लिख लेंगे, x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दोनों लाइनें फ्रेम हो गई हैं। अब हम ग्राफिकली इन दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन चेक करेंगे हम। तो दोनों लाइनें लिख ली हमने, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर से हमने निकाली थी, वो हमने जब इसको सॉल्व किया तो दूसरी लाइन आ गई हमारी x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम ग्राफिकली सॉल्यूशन इसके, सॉरी फॉर इंटरप्शन।